Okay. Topic is muscles acting at the shoulder joint. So during this lecture, we'll be covering the concept of origin and insertion. We'll be discussing about the types of muscle actions, and we'll be discussing about the muscles specifically acting at the shoulder joint. तो हम आज के लेक्चर में हम ओरिजिन इंसर्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मसल एक्शंस उसके बारे में भी पढ़ेंगे, एंड मसल्स जो कि आपके शोल्डर जॉइंट पे कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. Okay, I will start with the concept of origin and insertion. ये भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. This is also very much important for you. So if you understand this concept of origin and insertion, so आपको line of action जो है muscles का निकालना easy हो जाएगा. If you understand this concept, then you will be able to understand the line of action. Line of action is nothing but the resultant force which is applicable at the attachment side. Okay, so let us see what is origin and insertion. So there are two ways to learn this, understand this. So the common norm is origin is the most stable and they tend to be closer to the trunk. जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति यहाँ से मसल की हो रही है, वो हमेशा सबसे स्थिर माना, सबसे स्थिर पॉइंट होता है और वो धड़ के करीब होता है. Is closer to the trunk means you can say proximal to the trunk. Remember the term proximal. And if you go to insertion, it is the least stable and it is generally away from the trunk. That means ये कम स्थिर होता है और normally ये धड़ से दूर रहता है, यानी कि distal from the, it is located distal from the trunk. So common norm, because if you are talking about muscles, I believe already are, I mean, through the already all of you are already through the types of muscles. ओके, सो आपने जो मंडल सर का जो कल क्लास लगाया था उसमें थोड़ा आइडिया लग गया आपको कि कितने प्रकार के मसल्स हैं. हम जो मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके बोन्स पे कार्य करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स, ओके, नॉट द अदर टाइप्स. यू विल आल्सो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आल्सो, अगेन दैट टू इन फिजियोलॉजी. Okay, so when a muscle contracts, it simply contracts. जब मसल कार्य करता है उसको कोई डायरेक्शन कुछ नहीं पता होता, वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है. सो जो कॉमन नॉर्म है, द कॉमन नॉर्म की नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो इंसर्शन है, जो कि सबसे अस्थिर बिंदु है, अस्थिर पॉइंट है जहां पे मसल जाके लगता है, वो ओरिजिन जो कि सबसे स्थिर जो बिंदु है उसकी तरफ मूव करता है. द कॉमन नॉर्म इज व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, the insertion side moves towards the origin. Okay, for example, अगर मैं biceps की बात करूं, if I talk about biceps, so biceps का जो origin है इधर आपके स्केपुला में होता है origin. ठीक है, अभी आप जस्ट नाम मात्र के लिए. और इसका जो insertion है somewhere around radial tuberosity, वो joint cross करके. ठीक है, the origin of bicep muscle is at the scapula, is on the scapula, and insertion side is on the radial tuberosity. ठीक है, radial bone कह सकते हो आप. So when this muscle shortens, जब आप उसको stimulus मिलेगा, when a stimulus arrives at the biceps, for example you are doing a bicep curl, okay, so वो muscle छोटा हो जाता है, it contracts. So because this scapula is near is closer to the trunk, okay, so this is the most stable part and this insertion is the least stable. तो ये चीज है, ये आपकी उस तरफ मूव करेगी ओरिजिन की तरफ. ठीक है, जो मसल जो पुल लगाता है वो इंसर्शन से फिर वो ओरिजिन की तरफ जाता है. दिस इज द कॉमन नाम. As I said, because scapula is closer to the trunk, it is a more stable as compared to the insertion side. So when a muscle contracts, the insertion side moves towards the origin side. This is anatomical basis. Okay. Whereas
इफ यू लुक एट अदर एस्पेक्ट, मैकेनिकल बेसिस में ओरिजिन इंसर्शन ये चेंज होता रहता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमिकल टर्म्स, तो ओरिजिन रिमेन्स क्लोजर टू द ट्रंक and insertion is away from the trunk. ये बात आप ध्यान रखिएगा. Then one more term is there, reversal of muscle action. Actually it is a misnomer. इसके नाम में थोड़ा वो है, लेकिन इसको समझने के लिए रिवर्सल ऑफ मसल एक्शन का मतलब है मसल एक्शन वही रहेगा, अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो फ्लेक्शन ही रहेगा, द मसल एक्शन रिमेन्स द सेम. इफ फ्लेक्शन इज हैपनिंग, फ्लेक्शन विल हैपन. द रिवर्सल इज इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन मूविंग टुवर्ड्स द इंसर्शन साइड. जो ओरिजिन है, जो जहां से उत्पत्ति हो रही है, वो अब क्या कर रहा है, वो इंसर्शन की तरफ. अब उसमें क्या, कैसे हुआ वो, हाउ इट इज पॉसिबल, आपने इंसर्शन साइट को स्टेबल कर दिया, you stabilize the insertion site. So for example, initially you were doing bicep curl, free weight से आप bicep curl कर रहे थे, you were doing bicep curl using the free weight. Now you are doing chin-ups, ठीक है, chin-ups. अब chin-ups में क्या हुआ, your origin is moving towards the insertion site. chin-ups जो आप पकड़ के करते हो ना, chin-ups, pull-ups जो कहते हैं, ठीक है, origin is moving towards the insertion site. So that means reversal of muscle action. Actually it is reversal like in this way, like origin is moving towards the insertion. So ये concept आपने याद रखा, origin and insertion. Then types of muscle action. मसल कितने प्रकार से कार्य करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स मींस छोटा हो जाता है व्हेनेवर अ स्टिमुलस comes. Okay, so when a muscle shortens, or you can say the attachment, two attachment sides where muscles are attached come closer together, okay, then that type of muscle action is known as concentric contraction. जब मसल छोटा हो जाता है, संकुचित होता है, जब जहां पे वो लगा होता है मसल, दोनों भाग जो है करीब आने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है आपका concentric contraction. Okay, so then eccentric contraction. Eccentric contraction में क्या होता है, जहां पे मसल्स अटैच्ड हैं आपकी दो साइड्स पे, अब वो क्या करते हैं, अटैचमेंट साइड दूर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मसल लेंथन्स, लंबाई जो है वो बढ़ जाती है. सॉरी. So example, what are the examples? Concentric and eccentric. Again, I will take the example of bicep curl. Okay, so whenever you are doing bicep curl, आप वेट उठा रहे हैं, फ्री वेट उठा रहे हैं, ठीक है, मसल छोटा हुआ, जो इंसर्शन साइट है वो ओरिजिन के करीब आ रहा है, the insertion site is going towards the origin side, so that becomes the concentric muscle action. Eccentric, अब उसी वेट को, अब बाइसेप कर्ल कर रहे हो, कर्ल कर लिया, अब उसी वेट को, नाउ इनिशियली एल्बो फ्लेक्शन हो रहा था, अब उसी वेट को आप नीचे लेके जा रहे, ठीक है, तो ये मसल लंबा होने की कोशिश कर रहा है, दैट इज eccentric. Okay, so normally concentric contraction, अगर हमें एक्टिव ग्रुप निकालना है, because this concept is also important, because you will be analyzing the skills. आपको जो होमवर्क या प्रैक्टिकल दिया जाएगा, you will be analyzing joint actions, movement, as well as the active muscle groups, or you have to identify whether the active muscle group is undergoing concentric muscle action or eccentric muscle action. आपको ये भी पता करना होगा concentric है eccentric. So इसका ये बिल्कुल सिंपल है निकालना. यूजुअली कॉन्सेंट्रिक में मसल छोटा होता है, एंड यूजुअली इट इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. सपोज आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो नॉर्मली, तो उस संदर्भ में आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो. देन इसेंट्रिक, आप बॉडी लोअर कर रहे हो, आप बॉडी को लोअर कर रहे हो, ठीक है, सो आप नीचे को कर रहे हो, यूजुअली इट इज डन विद द ग्रेविटी. विद द ग्रेविटी है तो दैट मींस यू हैव टू कंट्रोल दैट मूवमेंट. इट इज यूजुअली अ डिसेलरेटिंग, ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे हो मूवमेंट को, दैट बिकम्स इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक मसल एक्शन. इसी प्रकार कॉन्सेंट्रिक, अगर कॉन्सेंट्रिक में एक और मैं बात, वो इट्स एन एक्सेलरेटिंग एक्टिविटी, मींस उसमें स्पीड बढ़ जाता है, इधर आपने स्पीड को कंट्रोल करना है,
अगर एकदम नीचे गिरेगा, गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, ग्रेविटी विल ट्राई टू अट्रैक्ट योर वेट, इफ यू डोंट कंट्रोल इट, एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा, इंजरी होने का चांस है. सो द सेम मसल विल गो इनटू इसेंट्रिक मसल एक्शन. ओके, सो इसका वन मोर एग्जांपल, जैसे आप जंप्स लगाते हैं, बिफोर यू टेक अ जंप यू टेक अ टिप. ओके, आप नीचे की तरफ बैठते हैं, तो कुछ जो मसल्स हैं आपके स्ट्रेच हो जाते हैं, जो मसल्स हैं वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ताकि आप धड़ाम से नीचे ना करें. your muscles go into eccentric muscle, perform eccentric muscle action so that you control the downward movement, क्योंकि आप ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं. ओके, एंड देन व्हेन यू पुश, जब जैसे ही पुश करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, द सेम मसल्स विल अंडरगो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वो संकुचित हो जाते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिकॉज आई रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, giving you information again and again, that the same concepts will be used in analyzing different skills, analyzing different exercises. You have to identify the concentric as well as the eccentric. Okay, then comes the isometric muscle action. Isometric muscle action means like there is no change in muscle length. Actually, technically that statement itself is incorrect. So but सिंप्लिसिटी के लिए आप कोई चेंज नहीं होता है उसके मीन्स, इसको और भी सिंपल याद करने का कि जॉइंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपने स्थिर कर दिया. सपोज कि इफ आई एम कैरिंग वन वेट, मैंने बाइसेप कर्ल किया, ठीक है, वेट को मैंने इधर स्थिर रख दिया, ठीक है, इधर मैंने रोक लिया वेट को, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बट दैट मीन्स कि मैं कंट्रोल तो कर ही रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट वेट सो दैट इट डज नॉट फॉल डाउन, वो ताकि नीचे ना गिरे. मसल्स तो एक्टिव है, बट मसल्स का जो लेंथ है ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, जॉइंट मूवमेंट भी नहीं हो रहा, देयर इज नो मच दैट मच जॉइंट मूवमेंट, so that becomes isometric contraction. So and now I move on to type of muscle fiber, means arrangement of muscle fibers. ये जो आपके muscle fibers हैं, again मैं like just wanted to remind you of your yesterday's lecture, जहाँ पे मंडल सर ने आपको मसल्स के बारे में बताया था. ठीक है, सो मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, रिमेंबर the muscle structure over there. Okay, now the fibers can be arranged in different ways, especially they are arranged in two ways: parallel or oblique. Parallel means the fibers are arranged parallelly along the long axis of the muscle. ठीक है, जो लंबी धुरी है मसल्स की, ठीक है, उसके समांतर जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो रहते हैं. ठीक है, दैट इज पैरेलल. तो पैरेलल की खास बात क्या होती है, दे टेंड टू बी लॉन्गर एंड हैव मोर पोटेंशियल फॉर रेंज ऑफ मोशन. उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा रहता है. ठीक है, इसके भी कई प्रकार हैं, देयर आर मेनी टाइप्स. ओके, आई विल स्टार्ट विद स्ट्रैप. एज यू कैन सी इन द स्लाइड, स्ट्रैप, फ्यूजिफॉर्म, रोम्बॉइडल, ट्रायंगुलर. स्ट्रैप मींस एक जैसे पट्टी की तरह होता है. ओके, अगेन इट इज लॉन्ग, एंड इसका सबसे सिंपल उदाहरण है आपका सार्टोरियस एंड स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड. ठीक है, ये जो अगर आप गर्दन को घुमाएंगे तो पट्टी नुमा जो मसल है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, ये आपका स्ट्रैप मसल. Then the second type in parallel is fusiform. Now, if you look at the shape of this fusiform, you will see this is more wider in the middle, and it narrows or tapers at the end where it attaches to the bone, जहां पे वो टेंडन के साथ कंटिन्यू होके बोन्स के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, सो ये एक स्पिंडल शेप हो जाता है, एक तरह से स्पिंडल की तरह हो जाता है. तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण है आपका बाइसेप्स. बाइसेप मसल इज फ्यूजिफॉर्म, पैरेलल है. पैरेलल के अंदर कौन सा है, फ्यूजिफॉर्म. ब्रैकियालिस, बाइसेप्स के नीचे एक मसल है ब्रैकियालिस, हम करेंगे मसल्स के बारे में करते हैं. देन रोम्बोइडल. ओके, इफ यू रिमेंबर योर क्लास 8, 9, 10, ओके, 8वीं 9वीं 10वीं में आपने रोम्बस, एक क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, रोम्बस उसमें होता है. रोम्बस मींस कि जो एक डायमंड शेप होता है. ओके, जस्ट लाइक उसकी चारों साइड्स जो है इक्वल रहती है.
बट इट इज नॉट ए स्क्वायर. स्क्वायर में 90 डिग्री का कोण होता है. सो द मसल इज विजिबल लाइक दैट. मसल का शेप कुछ इस तरह से होता है कि इट लुक्स लाइक अ रोम्बस. सो इसका सबसे सिंपल उदाहरण है, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज योर रोम्बॉइड्स मसल. ओके, सो एंड रोम्बॉइड्स हो गया. देन प्रोनेटर क्वाड्रेटस करेंगे हम आगे आगे करेंगे. देन इसी में जिस पैरेलल मसल फाइबर्स में you have triangular shape. The muscle fibers are arranged. You can see from one attachment site, एक attachment site से जो आपके fibers हैं, ठीक है, they are radiating outwards and making a shape similar to a triangle. Okay, so ये आपका insertion site है, ये आपका origin साइट हो सकता है, ब्रॉड बेस्ड. ओके, सो सिंप्लिसिटी, वन अटैचमेंट से दूसरे अटैचमेंट में इट इज रेडिएटिंग. और यू कैन ऑल्सो सी द रिवर्स, लाइक कि वो टेपर हो रहा है. ओके, इट इज टेपरिंग ऑल्सो. सो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है पेक्टोरलिस मेजर, आपका जो चेस्ट का जो मसल. सो ये हो गए पैरेलल. So once again I repeat, parallel की खास बात क्या है? They tend to be longer. The fibers are arranged mostly parallel to the long axis of the muscle. ठीक है, मसल्स का जो लेंथ है उसके लॉन्ग एक्सिस के उसके लॉन्ग एक्सिस समांतर रहते हैं. ठीक है, एंड दे हैव पोटेंशियल फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन. ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन में आपकी सहायता प्रदान करेंगे. नाउ अब ये तो था पैरेलल कि वो लॉन्ग एक्सिस के समांतर होता है. नाउ muscle fibers can also be attached, arranged in a different way. That means they are at certain angle. ठीक है, make a certain angle with the long axis. Okay, so long axis. तो if you look at this, तो उसे हम oblique कहते हैं और sometimes pennate muscle भी कहते हैं. So if you look at the shape of this pennate, so pennate means जैसे feather, जैसे पंखनुमा. आपने पंख देखे ना पक्षी के, बिल्कुल वैसा ही. So they can be divided into 3 parts. They can be unipennate, मतलब पंख एक साइड में होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर टिबियालिस एंटीरियर, सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो होता है, टिबियालिस एंटीरियर. बाइपेनेट, बाइपेनेट मीन्स पूरा पंख. ठीक है, आपका रेक्टस फीमोरिस एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, देन मल्टीपेनेट मीन्स की 2-3 पंख लगे होते हैं या ज्यादा हो गया पंख, है ना, पंखनुमा जो स्ट्रक्चर. इसका एग्जांपल है आपका डेल्टॉइड. सिंपलेस्ट एग्जांपल इज डेल्टॉइड. ओके, सो इसकी क्या खास बात है? इट हैज पोटेंशियल फॉर मोर स्ट्रेंथ. इसमें स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगा, बट इट इज लिमिटेड इन इट्स रेंज ऑफ मोशन पोटेंशियल. वंस जो रेंज ऑफ मोशन है इसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा एज कंपेयर टू द पैरेलल, जो मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट जो पैरेलल है. ठीक है, सो उसके हिसाब से रेंज ऑफ मोशन कम मिलेगा, बट स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा मिलेगी बिकॉज मोर फाइबर्स आर पैक्ड टुगेदर. ऑल्दो दे आर स्मॉल इन लेंथ, बट इट समेट्स. ओके, so okay, before going to shoulder joint, I will also tell you one more thing कि जो मसल्स के जो हम नाम करेंगे, ये मसल्स के नाम आई रिपीट, ये जो पहली बार कर रहा है, person who is doing it for the first time, it may be difficult for him, but there is certain logic in the way the muscles are named. Okay, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक रहता है. तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि आप नाम जो भी आते हैं मसल्स के एज इट इज, इसका हिंदी इंग्लिश एक जैसा ही नाम रहेगा. इट विल बी सेम एज इन हिंदी ऑल्सो. तो ये नाम तो याद करना ही पड़ेगा, बट इसको याद इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. अभी तो हमने अरेंजमेंट देख लिया. द मसल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू, कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. ठीक है, जहां पे ये स्थित है, ये मैं पहला एक पॉइंट बताता हूं. एक लोकेशन के हिसाब से भी उसका नाम, जहां पे वो स्थित है, where it is found, the muscle. So the muscle is named according to that location. For example, tibialis anterior, tibialis anterior, tibialis anterior. ठीक है, एंटीरियर. देखिए इसमें एंटीरियर मींस आगे की तरफ, लोकेशन बता रहा है. और कहां पे लोकेशन है? टिबियालिस, मतलब टिबियालिस मींस टिबिया पे, टिबिया पे आगे की तरफ, तो उसका नाम हो गया टिबियालिस एंटीरियर. ये तो था लोकेशन. Then it can be named according to
द शेप इन विच दे अकर, देखिए उनका जो रूप बन, उसके हिसाब से भी उसका नाम रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया रोम्बॉइड्स, रोम्बॉइड्स का नाम देखो, शेप रोम्बॉइड बन गया। सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस मींस जैसे एक आरी, जिसे कहते हैं ना हिंदी में आरी कहते हैं जिसे काटने के लिए, उस इट्स लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया सेरेटस, ठीक है। देन ट्रेपीजियस, ये करेंगे आगे, शोल्डर गर्डल के मसल्स नहीं है ट्रेपीजियस, बट मैं कॉन्सेप्ट रहा हूँ कि ये जो नाम है उनको, उसका भी लॉजिक है, ऐसा नाम क्यों बना, ठीक है। ट्रेपीजियस वो ट्रेपीजियम की तरह है, ट्रेपीजियम मींस वन साइड इज पैरेलल, ओनली वन साइड इज पैरेलल, द अदर टू साइड्स आर नॉट, ओके। देन उसके एक्शन के नाम पे भी उसका मसल रखा जा सकता है, मसल का नाम रखा जा सकता है। अब मसल का एक्शन है, सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्सटेंसर कार्पाई उल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई, कार्पाई मींस रिस्ट पे, एक्सटेंसर नाम से पता लग गया, एक्सटेंसर एक्सटेंड करना, ठीक है, तो वो रिस्ट को एक्सटेंड करता है, तो उसके नाम से, और इसमें लोकेशन भी आ गया, दोनों का मिश्रण हो गया, तो एक्शन उसके नाम से भी आ गया। देन दे कैन बी नेम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स मींस उसके भाग कितने। अब जैसे बाइसेप्स, बाय मीनिंग टू, टू हेड्स, ट्राइसेप्स, ट्राई मीनिंग थ्री, थ्री heads. In that way they are named. Then they can also be named according to their attachment site, ये कहां पे अटैच्ड है मसल है, उसके हिसाब से भी इसका नाम किया जा सकता है। अभी मैंने देखिए स्ट्रैप मसल्स का नाम दिया था स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, स्टर्नोक्लाइडो मींस स्टर्नम क्लेविकल, उत्पत्ति देखो स्टर्नम क्लेविकल, मैस्टॉइड एक ये कान के नीचे ये जो बोन होता है मैस्टॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे जाके लगता है, तो ये अटैचमेंट साइट के हिसाब से उसका नाम आ गया, ठीक है। देन उसकी दिशा, फाइबर्स की दिशा देखिए, उसके हिसाब से भी इसका नाम है डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। सो ये भी जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल्स, ठीक है, जो आपके एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक, ओब्लिक मींस की जो सर्टेन एंगल पे स्थित है, इसका डायरेक्शन। सिमिलरली they can also be named according to their size, साइज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल चेस्ट में दो मसल्स का नाम बताता हूं, एक का नाम है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, दूसरे का नाम है पेक्टोरलिस मिनिमस, ठीक है। सर पेक्टोरलिस माइनर, मेजर है माइनर है, मींस की साइज से बड़ा है, एक बड़ा है साइज में, एक छोटा है। इसी तरह आपकी जो थाइज में है, देयर आर मसल्स कॉल्ड एडक्टर मैग्नस, मैग्नस मींस बिग मसल, longest, longest means long, brevis, adductor brevis means short muscles। so ये हम आगे करेंगे। so जैसे मैंने बताया कि उनका भी लॉजिक रहता है, तो वंस अगेन कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया, किस हिसाब से ये मसल्स के नाम रखे जा सकते हैं। पहले लोकेशन के हिसाब से रखा जा सकता है, इट कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द शेप, टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट, अटैचमेंट जहां पे वो स्थित है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन आल्सो दे कैन बी नेम, किस दिशा में है उसके हिसाब से भी मसल्स का नाम रखा जाता है, और कितने नंबर ऑफ हेड्स है, कितने उसके कितने भाग हैं उसके हिसाब से भी उसका नाम रखा जा सकता है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक, टुडेज टॉपिक। सो if you talk about shoulder joint, when I talk about shoulder joint, I am specifically talking about glenohumeral joint, glenohumeral joint, ठीक है, जो आपका ह्यूमरस जो है आपका जो स्केपुला के साथ एक आर्टिकुलेशन करता है, तो वो आपका शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। बट व्हेन आई इफ यू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शोल्डर, शोल्डर में काफी जॉइंट्स हैं, इनफैक्ट शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, इसमें स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम जहां पे आपका क्लेविकल के साथ मिल रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट,
ठीक है, जहां पर एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, आपका जो क्लेविकल के साथ मिल रहा है, ठीक है। देन द स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, एक्चुअली इट इज फिजियोलॉजिकल जॉइंट, नॉट अ प्रॉपर जॉइंट, ठीक है। योर स्कैपुला बेसिकली फ्लोट्स ऑन द रिब्स, ओके, बीच में कुछ मसल्स रहते हैं, कुछ थोड़े कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, तो उसको भी फिजियोलॉजिकल ये जॉइंट के रूप में कहा जाता है, एनाटॉमिकल नहीं है। देन नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज द शोल्डर जॉइंट, दैट मींस द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, दैट मींस यहाँ पे एक स्कैपुला में एक कैविटी रहता है, सो आई विल show you the model also here, so please tell me if the model is visible, आपको visible है model, just raise your thumbs if it is visible, visible है, visible ना? okay, so yeah, I'm just yeah, just, okay, so ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका स्कैपुला, दिस इज द स्कैपुला, ओके, एंड दिस इज द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस हेड है जो आपका, ये दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी, जिसे हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ पे आपके ये आपके आर्टिकुलेशन करता है, दिस इज द शोल्डर जॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जॉइंट। सो इसमें बोन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा विचार करते हैं उस बारे में ना, उसके लैंडमार्क्स के बारे में ना। Now, this, if you look at this bone, see, this is the scapula. ये आपका स्कैपुला है, इसमें मैं बता देता हूं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, लैंडमार्क्स हम कर लेते हैं। दिस इज द क्लेविकल, क्लेविकल और कॉलर बोन, दिस इज द क्लेविकल और द कॉलर बोन। सो इफ यू लुक एट द हुक लाइक स्ट्रक्चर हियर, अगर आप हुक लाइक स्ट्रक्चर के बारे में देखें, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसका जो नाम है उसको कहा जाता है कोराकोइड प्रोसेस। मैं ये क्यों बता रहा हूं, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज देयर आर सर्टेन लैंग्वेज, ये लैंडमार्क्स हैं आपके, जहां से मसल्स की उत्पत्ति, ओरिजिन भी होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसका नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ, इफ यू गो टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, ये देखिए, ये जो एक, नाउ दिस इज अ फ्लैट बोन, ओके, हमने लास्ट टाइम किया था, दिस इज नोन एज स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, अगेन यहां से भी ओरिजिन रहता है मसल्स का, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। नाउ ये जो तिखा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर, देखो नाम से याद रहेगा, इंफीरियर एंगल, दिस इज द सुपीरियर एंगल, ये जो ऊपर की तरफ रहेगा, ओके। देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, एक हल्का सा, एक छोटा सा गड्ढा रहता है आगे की तरफ, ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला। तो जब जहां पे भी डिप्रेशन आ जाता है, एवर देयर इज अ डिप्रेशन, सो इन एनाटॉमिकल कॉन्टेक्स्ट वी कॉल दैट फोसा, फोसा कहते हैं। सो अगर ये आगे की तरफ है, दैट फोसा विल बी नोन एज सबस्कैपुलर फोसा, सबस्कैपुलरिस फोसा, ठीक है। अगर पीछे की तरफ है, देखो स्पाइन के नीचे है, उसी से नाम बन गया इंफ्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा, supraspinous fossa. So once again, this is the glenoid cavity, जहां पे आपका ये जो ह्यूमरस आके लगता है। Now humerus, if you look at the humerus, this is the head, okay, ये head है, and आप इधर देख रहे हैं, ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर है, देखिए एक घाटी, छोटी सी घाटी की तरह, देखिए इंटरट्यूबिकुलर ग्रूव कहते हैं, यहाँ से आपका जो लॉन्ग हेड है, टेंडन, टेंडन ऑफ योर लॉन्ग हेड ऑफ योर बाइसेप्स, यहाँ से वो जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ओरिजिन एंड इंसर्शन, ओके। सो अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है, देन गुड फॉर यू, okay. So if you look at this slightly anterior side, okay, anterior and medial, थोड़ा medial की तरफ है, ये एक उभार है, प्रोसेस है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर की तरफ एक उभार है, ठीक है। तो ये उभार, इसे हम ट्यूबरक्यूल्स कहते हैं, ट्यूबरक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो छोटा है उसे लेसर ट्यूबरक्यूल कह दिया, जो बड़ा है वो ग्रेटर ट्यूबरक्यूल कह दिया, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, okay. Then
what are the joint actions? So just remember, shoulder joint is the most mobile but the least stable of the joint. Okay, because at any point जब हम किसी भी संदर्भ में किसी भी मसल एक्शन के पॉइंट में बात करेंगे, इफ यू लुक एट दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर आप इसमें देखिए हेड जो है काफी बड़ा है, सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 से 30% तक ही इसका जो कांटेक्ट है हेड का कैविटी के साथ रहता है. इनफैक्ट ये कैविटी शेलो है, शेलो इतना नहीं है, ठीक है. इसका जो डेप्थ है इट इज इंक्रीज्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज लेब्रम. इधर एक लेब्रम होता है, ठीक है, वो इसका एक डेप्थ थोड़ा बढ़ा देता है. So yeah, that is why it is not that much stable, but stability is provided by for stability again ligaments में नहीं जा रहा, it is protected by the ligaments, and because it is synovial joint it will have the characteristics of the synovial joint, that is the capsules, ligaments, synovial जो cavity है, ठीक है. तो ये सारे जो features हैं आपके रहेंगे. Then what are the actions? Now what are the actions performed at the shoulder joint? ठीक है. सो आप इससे भली भांति परिचित हैं, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. आई विल जस्ट रिवाइज इट वन मोर टाइम. सो व्हेन यू एलिवेट, ओके, elevate your shoulder joint in the forward direction in sagittal plane, that movement is known as shoulder flexion. shoulder flexion, ठीक है. अब इसी के विपरीत अगर आप हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो वो एक्सटेंशन हो जाता है. थोड़ा और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन से परे वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है. देन शोल्डर एबडक्शन, ठीक है. टेक इन योर आर्म अवे फ्रॉम द मिड लाइन इन फ्रंटल प्लेन, ठीक है. आप अपनी बाजू को जो है फ्रंटल प्लेन में मध्य रेखा से दूर लेके जाते हैं तो वो शोल्डर एबडक्शन कहलाएगा. इसी प्रकार अगर आप मध्य रेखा के करीब लेके आते हैं तो वो शोल्डर एडक्शन कहलाए, शोल्डर एडक्शन कहलाए, ठीक है. देन यू हैव मीडियल एंड लेटरल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट. मीडियल रोटेशन अंदरूनी घुमाव और लेटरल जो है बाहरी घुमाव, ठीक है. इसका भी हमने डेफिनेशन किया था ना, मीडियल रोटेशन कैसे. सो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इफ द इंटीरियर पार्ट of the humerus, now because I am defining the shoulder internal rotation, so I will be using the definition, I will be defining in context of the bones, okay, context of the position also. So if the anterior position of the humerus rotates along its long axis towards the midline, that is known as shoulder internal rotation. जब आपके जो आगे का जो भाग है वो इस प्रकार से अपनी लंबी दूरी के हिसाब से घूमता है, जो ह्यूमरस है, कि वो मध्य रेखा की तरफ जा रहा है, तो वो हो जाता है शोल्डर इंटरनल रोटेशन. इसी प्रकार इफ द इंटीरियर सेगमेंट, ठीक है, रोटेट्स अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अवे फ्रॉम द मिड लाइन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस. देखिए ये ट्रांसवर्स प्लेन मूवमेंट है, रिमेंबर the rotation, complete the rotation, you will get to know. Okay. So that becomes shoulder external rotation. Then certain other auxiliary movements are there. Shoulder horizontal flexion or horizontal abduction, ठीक है, ये जो आर्म है, ये जो movement है, ठीक है. Then this movement shoulder horizontal abduction is this, horizontal adduction is this, ठीक है. हॉरिजॉन्टल एडक्शन को आप हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है. और इसे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन को हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन भी कहते हैं. सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, एबडक्शन मींस अवे फ्रॉम द, कॉन्सेप्ट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इन ट्रांसवर्स प्लेन. ये ट्रांसवर्स प्लेन में एबडक्शन हो रहा है, ठीक है. अगर ट्रांसवर्स प्लेन में एडक्शन हो जाएगा तो वो आपका शोल्डर एडक्शन बन जाएगा. हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्ड डालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर शोल्डर एडक्शन अकेला बोलोगे दैट मींस कि वो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अकरिंग इन द फ्रंटल प्लेन. सो इफ यू ऐड हॉरिजॉन्टल that means it is occurring in the transverse plane. But again, to initiate this movement you either flex or you either abduct.
आपको फ्लेक्शन या एबडक्शन से आप मूवमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मसल्स, ठीक है। नाउ we'll try to identify, we'll learn of the muscles and what are their actions. तो ये actions एक precursor है आपको याद रखने के लिए कि ये actions हो रहे हैं. These you should remember these actions. These are the actions performed at the shoulder joint. So I will start with the deltoid muscles. Okay, so if you look at the origin and insertion, अगर आप इसकी उत्पत्ति देखें, सिंप्लिसिटी के लिए आपको ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है, जो आप ये कह सकते हो इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, आपका जो ओरिजिन है इसका जो क्लेविकल है, एक्रोमियन प्रोसेस है और स्पाइन ऑफ द स्केपुला यहां पे हो, ठीक है। क्लेविकल, क्लेविकल भी कौन सा, लेटरल क्लेविकल है एक, एंड देन दिस एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड द स्पाइन ऑफ द स्केपुला, ठीक है। इसको हम वी कैन डिवाइड डेल्टॉइड इनटू थ्री पार्ट्स एक्चुअली। एंटीरियर, एंटीरियर डेल्टॉइड मींस कहां पे लगा है, आगे की बाजू में ऊपर की तरफ, okay. Anterior, it is located on the anterior upper side of your humerus, okay, that is anterior deltoid. Middle deltoid जो लेटरल साइड, मिडल को हम लेटरल भी कहते हैं, जो कि लेटरल साइड में लोकेटेड है, ठीक है। इसका और पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो पीछे की तरफ है, स्केपुला के पीछे की तरफ, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द ओरिजिन ऑफ एंटीरियर, एंटीरियर की जो उत्पत्ति है वो क्लेविकल से है, इतना याद रखना, क्लेविकल। मिडल डेल्टॉइड, मिडल डेल्टॉइड की जो उत्पत्ति है दैट इज द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहां से उत्पत्ति है, ठीक है। देन द पोस्टीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो है का स्पाइन ऑफ द स्केपुला, यहां से उत्पत्ति है, ठीक है। बस इतना याद रखो। और समाप्ति देखो, ये तीनों फाइबर्स जो हैं, जब ये तीनों फाइबर्स जो आएंगे, ठीक है, ये जब जब तीनों फाइबर्स जब सम्मिलित होंगे, जब सम्मिलित होंगे तो ये एक ह्यूमरस में, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली, देयर इज एक उभार रहता है, देयर इज अ ट्यूबरोसिटी, दैट इज नोन एज डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहां पे जाके समाप्ति होती है। एक्शन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इफ यू नो अबाउट द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द मसल, यू कैन थिंक अबाउट, यू नो अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन, किस दिशा में वो खिंचाव कर रहा है उसके बारे में पता लग सकता है। सो इफ आई टॉक अबाउट एंटीरियर डेल्टॉइड, एंटीरियर डेल्टॉइड देखिए, ये जो लेटरल कैविकस है ये ऐसे आ रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, ओके। सो इसके फाइबर्स, the fibers of anterior deltoid is going like this and attaching at the deltoid tuberosity. So if you look at the line of action, आप इसको एक मान लीजिए एक धागा है, इधर से धागा मैंने इधर तक बांध लिया, I have attached one rope, ठीक है, from this clavicle to, sorry, clavicle to your deltoid tuberosity. So what will happen if I shorten the length of that rope or thread, अगर मैं धागे की जो लंबाई है उसको मैं छोटा कर दूं, what will happen? It will pull the humerus, है ना, वो अब पता किया है वो ऐसे आ रहा है, अगर छोटा हो गया, सपोज कि मसल का एक्शन, अब देखिए मसल अब यहां से यहां तक है, ठीक है। अगर मैं इसको खींचूंगा, यहां से धागा खींचूंगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज दिस एक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन। सो ये एंटीरियर डेल्टॉइड जो है शोल्डर फ्लेक्शन में आपकी सहायता करता है, शोल्डर फ्लेक्शन में। दैट इज वाई मैं बता रहा हूं आपको ओरिजिन एंड इंसर्शन का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा बहुत आपको मसल, ये नहीं कि ओके रट्टा मार लिया मसल्स का नाम एंड देयर एक्शंस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर लोकेशन, कहां पे कैसे। इट विल आल्सो हेल्प इन इंटरनल रोटेशन, अंदरूनी घुमाव, अंदरूनी घुमाव पे भी हेल्प करेगा। एंड इट विल आल्सो हेल्प इन, अब ये देखिए, ठीक है, व्हाट इज दिस एक्शन, देखिए ये देखिए एंटीरियर फाइबर यहां से यहां तक आ रहा है, देखिए अगर ये छोटा होगा, संकुचित होगा, क्या एक्शन होगा शोल्डर का, ओके, शोल्डर अडक्शन, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन, वहां पे भी आपकी सहायता प्रदान करेगा ये, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हम अभी मैं जाता हूं मिडल, ये एबडक्शन में भी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, इट हेल्प्स इन एबडक्शन। सो वंस अगेन आई रिपीट, एंटीरियर डेल्टॉइड फ्लेक्शन,
abduction and internal rotation and horizontal abduction. इसमें सहायता प्रदान की. You just write it down. Okay, then I come to the lateral aspect. Lateral aspect देखिए, ये acromion से ऐसे जा रहा है. इसका line of action देखिए, धागा इधर से इधर तक गया, यहां से यहां तक गया. So if I shorten the length, अगर मैं इसको length को छोटा कर दूं, what will happen? What will happen? What is this action? Abduction, shoulder abduction. ठीक है. So because ये primarily ये lateral side में है, it is located on the lateral side, primarily it will be most active. ये सबसे ज्यादा एक्टिव है. इसका जो line of pull है, it will produce more force in abduction as compared to the other two. वो भी करेंगे abduction में, but because of this line of action ये ज्यादा, इसका तो percentage है एक्टिवनेस वो ज्यादा है. ठीक है. That is the middle deltoid or the lateral part. Then posterior, अब देखो posterior deltoid. So posterior deltoid is coming like this. Okay, this is ये spine of the scapula, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. ठीक है. On the posterior side can look. Okay, so अब देखिए ये फाइबर पीछे से आ रहा है. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपरी बाजू पिछली तरफ, ऊपर की तरफ जो है ये स्थित है, इसका लोकेशन है. ऐसे भी लिख सकते हो. You can write it, you can remember it like. So if you look at the fiber direction, आप डायरेक्शन लाइन ऑफ पुल अंदाजा लगाने की कोशिश करें. इफ द मसल शॉर्टन्स, अगर ये यहां से मसल ऐसे लग रहा है, ऐसे आ रहा है. ठीक है. तो जैसे ध्यान से दिखेगा नहीं, तो जस्ट इमेजिन ये पीछे से आ रहा है और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी समवेयर यहाँ पे आके अटैच हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन इफ इट शॉर्टन्स? व्हाट विल हैपन? कौन सा एक्शन होगा? व्हाट इज दिस? देखिए ये पीछे से छोटा हुआ, ये पीछे की तरफ गया, एक्सटेंशन. इट विल हेल्प इन एक्सटेंशन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सटेंशन के अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सटर्नल रोटेशन ऑल्सो. एक्सटर्नल रोटेशन में भी सहायता प्रदान करते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो इफ आई एब्डक्ट माय शोल्डर, एब्डक्ट, ठीक है, मतलब फ्रंटल प्लेन में एब्डक्शन करूंगा. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? हॉरिजॉन्टल शोल्डर हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन. शोल्डर हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन यहां पे भी सहायता प्रदान करेगा. सो वंस अगेन इसको दोबारा से देखते हैं. डेल्टॉइड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एंटीरियर आगे की तरफ जो स्थित है, मिडल और लेटरल जो बाजू साइड में है जो. ठीक है. मिडल फाइबर, एंटीरियर, मिडल एज वेल एज द पोस्टीरियर. एंटीरियर फ्लेक्शन, तो पोस्टीरियर बिल्कुल उल्टा है. अब इसको याद करने का तरीका है, एंटीरियर का एक्शन याद कर लो, पोस्टीरियर बिल्कुल उल्टा है उसका. ठीक है. एंटीरियर अगर फ्लेक्शन है, पोस्टीरियर एक्सटेंशन है. एंटीरियर इंटरनल रोटेशन है तो पोस्टीरियर एक्सटर्नल रोटेशन है. एंटीरियर अगर हॉरिजॉन्टल एडक्शन है तो जो पोस्टीरियर है हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन. हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन एट द शोल्डर. मिडल डेल्टॉइड एब्डक्शन, और ये तीनों मिलके एब्डक्शन करवाते हैं. Although जैसे मैंने बताया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस इज मोस्ट, so it is the percentage wise if you say कि ये ज्यादा एक्टिव रहता है. ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, एक्टिव रहते हैं, बट इसका कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. in that way you have to remember deltoid. Then coming to the next, okay, next muscle, that is pectoralis major. Again this is a big muscle. Pectoralis major कहाँ पे लोकेशन? Chest. Okay, anterior. So now it has got 2 origins actually. इसके 2 उत्पत्ति हैं. If you look at this, ठीक है, हमने डेल्टॉइड में क्या किया? लेटरल क्लेविकल था उसका जो ओरिजिन था. The origin of deltoid was lateral clavicle. यहाँ पे क्या है? ये मीडियल क्लेविकल चला जाएगा. ठीक है. ये अंदर की तरफ, मीडियल मींस की जो मध्य रेखा के करीब है. इफ यू लुक एट, ठीक है, ये ओरिजिन है, उत्पत्ति जो. देन द अदर इज द स्टर्नल हेड. जो स्टर्नम, जो आपकी जो हड्डी है,
वहां से उत्पत्ति ले रहा है। एंड इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन आपका ह्यूमरस, आप ह्यूमरस याद कर दिए, ठीक है, ह्यूमरस याद रखिए, दैट्स इट, नो नीड टू रिमेंबर द क्रस्ट, स्पेसिफिक में नहीं जाते हैं, कोई ओरिजिन आप बोन्स का नाम याद रख लिए, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इफ यू ट्राई टू रिमेंबर दैट ओनली, दैट विल सफाइस, उसी से हो जाएगा काम। सो अब इसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? सो सपोज यहां से धागा, ये पूरे एरिया से, once again I will show you, okay. Okay, this is not easy. So I will show, okay, so यहां से देखिए, यहां से धागा यहां की तरफ जा रहा है, इट्स लाइक दिस, इट्स ट्रायंगुलर शेप आल्सो, ठीक है, ये मैंने पहले भी किया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ये धागा छोटा होता है, कौन सा मूवमेंट में हेल्प करेगा? व्हाट इज दिस एक्शन? एडक्शन, adduction, okay. Now because its insertion is located on the anterior side, so it will also help in internal rotation, अंदरूनी घुमाव में भी, देखिए इधर से अंदरूनी घुमाव, internal shoulder internal rotation, and from this position, okay, it will also, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये मसल है, अगर छोटा हुआ, व्हाट इज दिस एक्शन? हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन या हॉरिजॉन्टल एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है, ये है कॉमन, ठीक है, दोनों, जो क्लेविकल से निकलता है उसे क्लेविकल हेड कहते हैं, वी नेम इट क्लेविकुलर हेड, द पोर्शन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द स्टर्नम, इट इज नोन एज स्टर्नल हेड, ओके। तो इनके ये कॉमन एक्शंस हैं, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ क्लेविकुलर हेड हेल्प्स इन फ्लेक्शन, इनफैक्ट फर्स्ट 60 डिग्रीज जो आपका फ्लेक्शन है, फर्स्ट 60 डिग्रीज में यू कैन ऑल्सो फील दैट, इधर आप हाथ रख के आप रेजिस्टेंस, यू अप्लाई रेजिस्टेंस एंड ट्राई टू फ्लेक्स, यू विल फील दैट दिस मसल इज एक्टिव, आप ये देख पाएंगे ये मसल एक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्लेविकुलर हेड इज एक्टिव फ्लेक्शन में, जो 60 डिग्री तक जाएगा वो वहां तक एक्टिवेटेड रहता है, वहां उसके बाद उसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं रहेगा, चेंज। उसी के विपरीत अगर मैंने फ्लेक्शन कर दिया, फुल फ्लेक्शन से अगर मैं इधर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इफ आई अप्लाई रेजिस्टेंस हियर, okay, if I try to come down, this sternal head will help in extension, again the same scenario, जो पहला 60 डिग्री वहां तक ये एक्सटेंशन करेगा। So if you look at the exercises, अगर हम exercises के बारे में बात करें, so अपने चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन एंड रिक्लाइन जो वो करने का मकसद क्या है? वो डिफरेंट जो आपके फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। The purpose of doing variations in exercises to activate or strengthen the various fibers. Okay, clavicular sternal head. Okay, we'll do one more muscle. I think if time permits, we can do 2 more. Now again, this is a big muscle, latissimus dorsi. ये सभी को पता है, latissimus dorsi, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है, आपने क्या याद रखना है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, इनफैक्ट टू बी स्पेसिफिक T7 से स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द T7, एंड सैक्रम एंड इलियम, वर्टिब्रल कॉलम, सैक्रम एंड इलियम, यहां पे इसका ये उत्पत्ति है। समाप्ति कहां पे है? ह्यूमरस। नाउ बिकॉज इट इज कमिंग लाइक दिस, ये आपका जो लिप है, ठीक है, दिस इज योर शोल्डर जॉइंट, तो ये जो पीछे से है ना, ये ऐसे आके लग रहा है, इट इज कमिंग लाइक दिस ऑन द स्लाइटली ऑन द इंटीरियर साइड, दैट इज व्हाई ये, बिकॉज ये आगे की तरफ थोड़ा लगता है, दैट इज व्हाई इफ यू अगेन फॉलो द सेम प्रिंसिपल, इधर से धागा इधर तक, इधर से धागा इधर तक गया, ठीक है, अगर ये खिंचाव होगा, व्हाट आर द एक्शंस?
because it is on the anterior side, it will help in internal rotation. It will help in internal rotation. अंदरूनी घुमाव में सहायता प्रदान करे. ठीक है. And again, from the line of action of that muscle, line of action of the muscle, what is this action? Adduction. Adduction में सहायता प्रदान करेगा. It will also help in extension, hyperextension, and to a certain extent, it depends on the position. Okay, तो ये horizontal extension में भी ये थोड़ी सी सहायता प्रदान करेगा. Horizontal abduction में depend, ये position पे depend करेगा. ठीक है. So these are the actions you have to remember. Latissimus dorsi. Once again, it is located to the posterior back में पाया जाता है. ये पीछे पीठ की तरफ, पीठ में पाया जाता है. ठीक है. Origin है vertebra, sacrum and ilium, and इंसर्शन जो है आपका ह्यूमरस में है. एंड ये एक्शन क्या कराएगा? अगेन मैं बार बार ओरिजिन इंसर्शन में इसीलिए बता रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मसल, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है आप अंदाजा लगा पाए कि क्या क्या इसका मूवमेंट हो सकता है. एडक्शन हो गया, इंटरनल रोटेशन, it performs, helps in adduction, internal rotation, extension, hyper extension, and then horizontal extension, certain extent horizontal extension, horizontal abduction. It depends on the position. ठीक है. That is latissimus dorsi. Now teres major. So ये latissimus dorsi का एक साथी है. ठीक है. ओरिजिन जो है स्केपुला, इतना याद रख लो. इंसर्शन जो है ह्यूमरस. ओरिजिन स्केपुला, इंसर्शन ह्यूमरस. ये पीछे की तरफ अगेन पाया जाता है. ये साइज में छोटा है. इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द latissimus dorsi. इट परफॉर्म्स ऑल द एक्शन दैट latissimus dorsi परफॉर्म्स एक्सेप्ट हाइपर एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर साइज. इसके जो एक्शन है याद रखने, आप latissimus dorsi के सारे एक्शन याद कर लीजिए. You remember all the actions of latissimus dorsi. Just remove that hyper extension action. आप हाइपर एक्सटेंशन एक्शन को रिमूव कर दीजिए, तो वो टेरेस मेजर. तो latissimus dorsi के साथ हमेशा टेरेस मेजर ये याद रखना. ठीक है. So synergist, it is synergist with the latissimus dorsi. It works with the latissimus dorsi. ठीक है. So I think मैं आज के लिए I will keep it to these muscles. In the next lecture I will be covering the other muscles, but before I go, I still have 5 minutes. Let us try to analyze certain exercises. ठीक है. अभी हमने कौन कौन से मसल्स किए? We have done deltoid, we have done pectoralis major, we have done latissimus dorsi and teres major. ये 4 मसल्स किए. ठीक है. Now we'll try to I will show you certain exercises and you try to figure out which part, which muscle would be active. ठीक है. So now what is the exercise here shown here? Front raise है ना, front dumbbell raise. Identify the joint first. कौन सा joint हम कर रहे हैं? Shoulder joint. ये movement analysis का एक precursor है आपके लिए. ठीक है. Now identify the joint. You identify the joint, shoulder. What is the movement occurring? Movement क्या हो रहा है shoulder? It is a forward movement of arm in frontal plane, sorry, sagittal plane, sorry. Forward movement of arm in sagittal plane. ये बात याद रखना. ठीक है. तो ये मूवमेंट का नाम क्या हो गया? What is the name? Flexion. अब जो आपने नोट्स बनाए, आप देखो कौन कौन से मसल्स एक्टिव रहेंगे फ्लेक्शन में. एंटीरियर डेल्टॉइड, ये एक्टिव रहेगा. और पेक्टोरलिस मेजर क्लेविकुलर हेड अप टू 60 डिग्रीज. ठीक है. वो भी एक्टिव रहेगा. सो यू कैन योरसेल्फ डू द एक्सरसाइज एंड यू कैन डू. ओके. आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं. यू कैन फील, यू कैन पैल्पेट. आप महसूस करके देख सकते हैं कहां पे वो टाइटनेस कंट्रैक्शन है. ठीक है. दिस इज नाउ look at this exercise. What is the joint movement occurring? Joint identify करो सबसे पहले. shoulder joint movement हो रहा है. क्या movement हो रहा है? What is the movement occurring at the shoulder joint? क्या हो रहा है? shoulder abduction. ठीक है. ये abduction हो रहा है. अब again go back to the notes.
कौन से मसल्स सहायता प्रदान कर जो अभी तक हमने की है? वी हैव डन दैट. ओके, व्हिच आर द मसल्स? डेल्टॉइड, है ना, सबसे सिंपल है डेल्टॉइड. ओके. नाउ हियर ये वेरिएशन है, अगेन ये वेरिएशन है, इसे हम रिवर्स फ्लाई और बेंट ओवर लेटरल रेस कहते हैं. ठीक है. सो अगेन आइडेंटिफाई जॉइंट मूवमेंट. जॉइंट कौन सा है? शोल्डर जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट शोल्डर जॉइंट. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इट? देखिए, अगर इफ यू लुक केयरफुली, व्हाट इज दिस मूवमेंट? ये डंबल को ऐसे हम नीचे करके ऊपर की तरफ ऐसे लेके जा रहे हैं ना. व्हाट इज द मूवमेंट? देखिए, हॉरिजॉन्टल कौन सा है? हॉरिजॉन्टल एबडक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन. नाउ यू गो बैक. ठीक है, अभी हमने कौन सा मसल किया जो उसमें सहायता प्रदान करेगा? डेल्टॉइड का कौन सा मसल जो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में सहायता प्रदान करेगा? हैव अ लुक. यू विल फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ एक्शन, posterior deltoid. Okay, posterior deltoid. So in this way you can, अभी मैंने सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज हैं जो 4 मसल्स जो हमने किए हैं उसके हिसाब से. ठीक है. So the same way you can analyze other exercises also. आप और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो. ठीक है, एनालाइज जब हम एक बार ये चैप्टर कर लेंगे, once I'm finished with this chapter, ठीक है, I will give you certain exercise. You'll be given certain activities. Okay. For example, जैसे you can try to identify the movements occurring at the shoulder joint in your daily activities. Okay, जो आप दिन भर में जो activities करते हैं. ठीक है. For example, जैसे आपने जैसे मेल्स है ना, लड़के जो कंघी कहाँ पे रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं ना. तो पॉकेट में से निकालने के लिए आपका शोल्डर जॉइंट, देखो इसमें शोल्डर, एल्बो रिस्ट की तरफ मत जाना. डोंट गो टुवर्ड्स एल्बो रिस्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर शोल्डर जॉइंट. ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या मूवमेंट हो रहा है. व्हाट इज द मूवमेंट दैट अकर्स? ठीक है, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए है. हम डिस्कशन में आई विल डिस्कस दैट. देन इफ यू हैव कार, ओके, मैंने सीट बेल्ट डालनी है. सीट बेल्ट डाली ना, कौन सा एक्शन, कौन सा शोल्डर एक्शन, कौन सा मसल इन्वॉल्व हो सकता है? ये 4 अभी हमने किए हैं. वी हैव डन दीज. ओके. देन शेल्फ पे बुक रखिए. यू हैव प्लेस सम बुक ऑन द शेल्फ. नाउ यू हैव टू रीच आउट फॉर दैट. व्हाट इज द एक्शन? ओके, दिस सॉर्ट ऑफ. सो ये हम एक्टिविटीज हैं, विल बी डिस्कसिंग इन द डिस्कशन क्लास. सो आई होप इट इज क्लियर. Once again, I reiterate that these majority of you, this is for the first time. That is why I am going very slow. 4 muscles at a time. ठीक है, I will try to finish off the next time. मैं इसलिए slow जा रहा हूँ. 4 muscles किए हैं, इसको पढ़ो. ठीक है, आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, कहां से आपको उत्पत्ति जो समाप्ति है एग्जैक्टली बताने का जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट. यू जस्ट हैव टू टेल ओके कहां से है. ह्यूमरस में समाप्ति है, आगे की तरफ ह्यूमरस में, साइड में. दैट विल वर्क फॉर मी. ओके. बट ओरिजिन इंसर्शन एक्यूरेसी आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इसमें आपका ही फायदा है. ठीक है, आपको लाइन ऑफ एक्शन समझने में आसानी होगी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द मसल एक्शंस. यू आप एक्शन थोड़ा बना सकते हैं उसी से, लाइन ऑफ एक्शन से यू कैन मेक. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. ठीक है, आई होप यू आपको थोड़ा समझ में आया. ठीक है, otherwise like we'll be clearing the doubts. Okay, that's it for today. Thank you very much. Thank you.